Hello student, today we are going to discuss on our topic that is innate or inborn immunity. Now innate or inborn immunity means what? It is the all living organism are naturally gifted with their self defense mechanism and restrict the different infection from various kind of the microorganism present on the atmosphere. So innate immunity is the non-specific immunity and it is not for any particular microorganism. It is the generalized form of immunity and the mechanism of effective against the wide range of microorganism or a wide range of infectious agent. Okay, so innate or inborn immunity, it is the cell defense mechanism and it can be studied with the help of that is physiological or mechanical factor, biochemical factor, cellular factor, genetic factor and other factor. So all these factors are responsible for the overall immunization or overall event of the innate or inborn immunity. Now start with the physiological and mechanical factor. Physiological and mechanical factor, it is again divided into certain phases. First one is the skin, or it can be studied with the help of different body component like skin, mucous membrane, cilia, laughing, sneezing, washing action of tears, saliva and urine. Start with the skin. So we know that our skin is a very good barrier to the infection. Our whole body, human body is covered with the skin. Skin has a horny outer layer called as the cornum stratum. So this cornum stratum is a very good mechanism or it is a very good barrier against the various kind of microorganism. Then it will prevent the entry of microbial source into the body. But if there is a burn or some kind of the skin infection or wound infection, then and only then or cracked skin, so that the microorganism can enter inside the body. But in normally skin can prevent the various kind of microorganism to enter our body. So it is a one kind of the innate or innate immunity by the physiological and mechanical factor. Now second one is the mucous membrane. So mucous membrane is lining with the opening of passage to the body. ठीक है, and it will secrete the mucus. ये mucus secrete करता है and then mucus trap the microorganism. Okay, because जो mucus रहता है, so mucus is a sticky in nature. Mucus is very much sticky and so that it will protective barrier against the various kind of microorganism. Why? Because that mucous membrane is present in the nasopharynx region and it will be covered with the epithelial cell, and that epithelial cell is block the adherence of that bacteria to the, यानी ये जो mucus जो रहेगा ये क्या होगा, ये epithelial cell जो रहेगा तो ये epithelial cell को यानी स्टिक करेगा, जिसके कारण वहां पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है it will be collected with the help of that sticky mucus and remove out of the body as a curve. So it is the second mechanism. Now third one is the cilia. अब mucous membrane जो है epithelial cell present है no doubt in respiratory passage, but epithelial cell of respiratory passage are lined with the cilia. ठीक है, ये जो epithelial cell जो रहेंगी वो cilia से cover रहेंगी and cilia are helping to the mucus to trap the different microorganism present on the epithelial lining of the nasopharynx or respiratory passage. Respiratory passage में जितने भी यानी nasopharynx region में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उसको कलेक्ट करने का काम cilia करेगा and it will be stick to the cilia mucus. So it will constant जो movement रहेंगी cilia की, so constant movement of cilia help the mucous membrane to trap the different microorganism with the help of mucus. Then next one is the coughing and sneezing. Coughing and sneezing, it is the one kind of the mechanical action. Okay, when it is driving out the different kind of foreign particle and different microorganism are removed out of the body, which will be enter in the digestive and respiratory tract. जो भी digestive and respiratory tract में जितने भी microorganism body में गए हैं इनको बाहर करने का काम ये मैकेनिकल एक्शन से होता है, दैट इज कफिंग एंड स्नीजिंग. अपने को पता है जब स्नीजिंग होता है तो उसका जो स्पीड रहता है उस टाइम पे अपनी आंखें भी बंद रहती है, दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर. अगर इतनी स्पीड पे अपनी अगर आंखें खुली रही तो आंखें भी बाहर आ सकती है. सो व्हाइल स्नीजिंग आवर आईज विल बी क्लोज. Okay, so it is the rapid action and very forceful action so that the various kind of microorganism which are present in the digestive and respiratory tract are come out. Then washing action of tears, saliva and urine. तो
ये जो कंजक्टिवा ऑफ आई जो रहता है, इट विल कैरी द लैक्रिमल ग्लैंड. ओके, दैट लैक्रिमल ग्लैंड कंटेन द लाइजोजाइम. इसमें लाइजोजाइम प्रेजेंट रहता है इन अ टीयर्स ग्लैंड. Whenever there is a dust particle or microorganism or certain bacteria present that will be enter inside the eye, then there is a cell signaling will occur, and that due to that cell signaling, tear gland will secrete the tears, and tears contain the lysozyme. It is one kind of enzyme, and that lysozyme is responsible for the destruction of different bacteria or microorganism. ये जो टीयर्स में जो लाइसोजाइम रहेगा वो डिफरेंट बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में हेल्प करे, किल करने में हेल्प करेगा. देन है सलाइवा. अवर माउथ इज कंप्लीटली और कंटिन्यूअसली बात विद द सलाइवा. अपना माउथ जो रहेगा, बक्कल कैविटी, इट इज कंटिन्यूअसली बात विद द सलाइवा, एंड दैट सलाइवा कंटेन द सलाइवरी अमाइलेज. दैट सलाइवरी अमाइलेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया. तो सलाइवरी अमाइलेज के कारण इसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी रहेंगी, जिसके कारण भी वेरियस काइंड ऑफ बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन हो सकता है. देन थर्ड वन इज द यूरिन. सो द वॉशिंग एक्शन ऑफ यूरिन, remove the various kind of microbial sources present in the genitourinary tract. genitourinary tract में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको बॉडी से बाहर करने का काम ये यूरिन करती है. देन थर्ड टाइप जो है, सेकंड टाइप जो है, जो इसका बायोलॉजिकल फैक्टर है, दैट इज secretion of skin, then secretion of digestive tract, human milk, nasal secretion, saliva, lysozyme, interferon, complement and serum. There are the various factors responsible for the innate and inborn immunity. Start with the first, that is secretion of skin. So we know that skin is contain the two kind of gland. One is the sebaceous gland and another is the sweat gland. So sebaceous gland secrete the high fatty acid, पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल फैटी एसिड वहां पे सिक्रेट होता है, एंड स्वेट ग्लैंड सिक्रेट द स्वेट. तो स्वेट इज अ हाई सॉल्ट इन नेचर. इट इज द हाईली सॉल्ट एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज रिस्पॉन्सिबल एज अ बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट. स्वेट का जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रहता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट. Then sebaceous gland secrete the fatty acid, and that fatty acid is responsible to trap the microorganism in that high molecular weight substance, and it will be agglutinated, or it will be coagulate it and remove and present it. Okay, so fatty acid and then sweat is responsible for the destruction of microorganism. Then the main is what, the pH of skin. Skin का जो pH रहता है, that is 5.5 near about. So it will be responsible for the microbial effect. Okay, तो sebaceous gland जो fatty acid secrete करती है, it is an antiseptic in nature. That particular fatty acid secreted by the sebaceous gland of skin, which is the antiseptic property and also fungicidal and bacterial property also. Then second one is the secretion of digestive tract. It is the most important factor. We know that in a stomach, that high acidity, that is pH is 1.5 to 2.0 वगैरह. So that having the high pH जो रहता है, इस कंडीशन पे अगर अपना मोबाइल भी डाल सकते हैं अपने, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो अपना मोबाइल भी बर्स्ट हो सकता है, बिकॉज इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर. Why it is highly acidic in nature? Due to presence of the hydrochloric acid. वहाँ पे hydrochloric acid present रहता है. So that hydrochloric acid or different gastric juice secreted by the digestive tract, it will having the bactericidal property, because there are the oxygenetic cell are present in the lining of stomach. Then oxygenetic cell जो lining of stomach में present रहती है, वो HCl and different gastric juice secrete करती है, and that will be responsible for the destruction of various pathogen or infectious agent. Now third one is the human milk, that is called as the colostrum or mother milk. So that human milk is rich in lactoferrin and neuraminic acid. ये जो ह्यूमन मिल्क रहता है या मदर मिल्क, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, सो इट इज रिच इन लैक्टोफेरिन एंड न्यूरामिनिक एसिड, एंड विच इज फाइट अगेंस्ट द ई कोलाई एंड स्टेफिलोकोकस फैमिली ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो ई कोलाई एंड स्टेफिलोकोकस फैमिली के अगेंस्ट में ये ह्यूमन मिल्क काम करता है. देन नेजल सिक्रीशन. सो नेजल सिक्रीशन कंटेन द म्यूकोपॉलीसैकेराइड. नेजल सिक्रीशन में म्यूकोपॉलीसैकेराइड रहता है, एंड विच विल इनएक्टिवेट द वेरियस काइंड ऑफ वायरसेस. ओके, देन
saliva. तो saliva contains salivary amylase, which is also responsible for the destruction of microorganism. Then the most important, that is lysozyme. Lysozyme present in the tears, nasal secretion, then saliva, then gastrointestinal tract, sweat, then CSF, urine. So there are the various factors are present in the body in which the lysozymes are present. First of all, lysozyme was first time discovered by the Fleming. So it is having the low molecular weight protein molecule. It is a low molecular weight protein, and it is responsible for the lysis of gram positive bacteria. It is destruct the gram positive bacteria, but in cases it will also help to destruct the gram negative bacteria also. Some cases में ये ग्राम पॉजिटिव तो को डिस्ट्रक्ट करने में इसकी स्पेशलिटी तो है ही, लेकिन कुछ कंडीशन में ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रक्ट करता है. देन एग व्हाइट, इसका जो सोर्स है वो क्या है, तो एग व्हाइट इज ए रिच सोर्स ऑफ लाइसोजाइम. एग व्हाइट जो रहता है एल्बुमिन, सो उसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट रहता है. देन next one is the interferon. So interferon are the small group of non toxic glycoprotein है ये, and it is small amount secreted by the cell inside the body, but against of viral infection. Whenever, अब देखते हैं अपन की वेरियस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन है, सब है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है या बहुत सारे ये मैकेनिज्म प्रेजेंट है, नेचुरल बैरियर्स प्रेजेंट है. लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन अगर ह्यूमन बीइंग को होते तो दैट आर द वायरल इन्फेक्शन. तो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में अपने बॉडी में जो स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म प्रेजेंट है, दैट स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म इज द इंटरफेरॉन फैमिली. ठीक है, तो इंटरफेरॉन फैमिली जो है इट विल बी antiviral agent. It is against the antiviral agent and it will inhibit the intracellular viral replication. ये क्या करता है, वायरल का जो रेप्लिकेशन है इसको डिस्ट्रॉय करता है या इसको डिस्ट्रॉय करता है, एंड विच विल गिविंग द इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरसेस. क्या होता है, वायरस का जो mRNA ट्रांसक्रिप्शन होता है इसको ही ये इंटरफेरॉन ब्लॉक कर देता है. अगर वायरस के mRNA ट्रांसक्रिप्शन को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो ना तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन, ना तो ट्रांसलेशन, ना तो प्रोटीन सिंथेसिस और ना तो विरियन असेंबली. मतलब पूरा जो सर्कल रहने वाला है या वायरस का जो काउंट बढ़ने वाला है इसको ही ये डिस्ट्रॉय करने वाला है. मतलब वायरस का जो फर्दर फॉर्मेशन रहेगा या प्रोलिफरेशन रहेगा वो नहीं होगा, एंड सो दैट इंटरफेरॉन helps against the virus infection. Then interferon are also support. अगर इंटरफेरॉन अगर बढ़ रहा है या वायरस काउंट अगर बहुत ज्यादा है तो इंटरफेरॉन नेचुरल किलर सेल, मतलब ये जो सेलुलर फैक्टर है इसको भी सिग्नल देता है. उस टाइम पे इंटरफेरॉन और नेचुरल किलर सेल मिलके काम करेंगे अगेंस्ट द वायरसेस. सो इट इज ऑफरिंग द, यानी ये किस कंडीशन में होता है कि इंटरफेरॉन काम कर रहा है लेकिन अगर वायरस काउंट ज्यादा है तो उसको और कैंसरस सेल यानी और नेचुरल किलर सेल चाहिए, तो ये होता है कैंसरस कंडीशन में, ट्यूमर कंडीशन में. whenever there is a cancer situation, that interferon signal to the NK cell and that will collaborate and giving the effect action against the cancerous cell. तो इट विल ऑल्सो इनहिबिट द सेल प्रोलिफरेशन. इंटरफेरॉन जो है वो सेल प्रोलिफरेशन नहीं होने देता, सेल का काउंट नहीं बढ़ने देता ट्यूमर के कंडीशन में. तो कैंसर की जो कीमोथेरेपी रहती है, तो कैंसर के कीमोथेरेपी में इंटरफेरॉन को यूज किया जाता है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट जो है इट इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. इट इज द कॉम्प्लेक्स कास्केड सिस्टम मेड अप ऑफ नियर अबाउट 30 प्रोटीन मॉलिक्यूल. एक 30 प्रोटीन मॉलिक्यूल से एक कास्केड सिस्टम बना है विच इज हैविंग द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स. In natural condition, complement system is inactivated in form. Okay, but whenever it come in contact with the various kind of microorganism, it will be activated. लेकिन जब इसका कांटेक्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म के साथ होता है तो ये एक्टिवेटेड हो जाता है. और एक्टिवेटेड कैसे होता है कि यहाँ पे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स रहेगा, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स. यहाँ पे ना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ऑप्शनाइजिंग द माइक्रोऑर्गेनिज्म. माइक्रोऑर्गेनिज्म को ऑप्शनाइज करता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स को बढ़ाता है. और इम्यून कॉम्प्लेक्स में वहां पे यानी जो प्रोसेस जो रहती है वो होती है फैगोसाइटोसिस. अपन बाद में देखेंगे फैगोसाइटोसिस क्या होता है. ओके, नेक्स्ट है सीमेन. तो सीमेन कंटेन द स्पर्माइन एंड जिंक विच इज हैविंग द एंटीमाइक्रोबियल इन नेचर. नेक्स्ट फैक्टर इज द सेलुलर फैक्टर. फर्स्ट इज द फैगोसाइटोसिस and second one is the natural killer cell. Now what is the phagocytosis?
तो फैगोसाइटोसिस इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग। तो फैगोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ईटिंग। सेल ईटिंग मतलब क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले फैगोसाइटोसिस मतलब सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है, इन्फेक्टिंग सेल को या इन्फेक्शियस सेल को। इट वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द मेटनिकॉफ। सो मेटनिकॉफ नाम के जो साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया है। फैगोसाइटिक सेल दो तरह के रहते हैं, एक माइक्रोफेजेस और दूसरा रहता है मैक्रोफेजेस। तो क्या होता है, ये प्रोफेशनल यानी फैगोसाइटिक सेल है, लेकिन ऑन द ओकेजन कभी कभार ये फैगोसाइटिक सेल का काम या फैगोसाइटोसिस करने के लिए, जैसे डिफरेंट सेल जो रहती है वो अदर सेल भी काम करती है। तो न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, यूसिनोफिल है, तो ये भी सेल फैगोसाइटोसिस करेंगी ओकेजनली। बट फैगोसाइटोसिस होता है कि यहाँ पे सेल में दिस सेल आर डिराइव फ्रॉम द बोन मैरो। बोन मैरो से प्रोमोनोसाइट जो सेल जो रहती है, इट इज कॉल्ड एज द फैगोसाइटिक सेल, ये डिराइव किया जाता है। फिर ये प्रोमोनोसाइट जो बोन मैरो में जो प्रेजेंट रहता है, तो विच आर डिफरेंशिएट इनटू द मोनोसाइट, वो मोनोसाइट में डिफरेंशिएट होता है। मोनोसाइट में डिफरेंशिएट होने के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। बट क्या होता है, when monocyte are representative of the mononuclear phagocytic cell, उनका जो लाइफ स्पैन रहता है वो कम रहता है। ठीक है, तो मोनोसाइट का जो ब्लड सर्कुलेशन में जो लाइफ स्पैन रहेगा, इट इज नियर अबाउट द 20 to 24 आवर्स। तो ये लाइफ स्पैन इज स्मॉल। इतने छोटे लाइफ स्पैन में ये पूरा इम्यूनिटी कैसे देगा? तो ये जो मोनोसाइट है, इट विल बी अगेन डिफरेंशिएट इनटू द मैक्रोफेजेस। ये माइग्रेट होगा, ब्लड सर्कुलेशन से टिश्यू में माइग्रेट होता है, और टिश्यू में माइग्रेट होने के बाद ये बनता है मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस वहां पे बनने के बाद इट विल बी डिस्ट्रक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस के लिए वेरियस प्रोसेस रहता है, जैसे कि कीमोटैक्सिस रहता है, देन रहता है अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद यहाँ पे रहता है इंजेक्शन, देन रहेगा किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन, एंड लास्ट वन इज द रिलीज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले कीमोटैक्सिस मतलब क्या रहेगा, अटैचमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस में सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढ के लाया जाएगा, अटैक किया जाएगा सेल सरफेस पे। ठीक है, माइक्रोफेजेस के सेल सरफेस पे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्शन करने की जो प्रोसेस रहेंगी, दैट इज कीमोटैक्सिस। अटैचमेंट अगर हो गया, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये जो सेल है इसके सरफेस पे अटैचमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद यहाँ पे प्रोसेस आती है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, सुडोपोडिया रहता है ये सेल का। ये सुडोपोडिया क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी पूरा ऐसे कवर कर लेता है वो एरिया, और वहां पे फैगोजोम सिक्रेट होते हैं। दैट फैगोजोम प्रेजेंट इन दैट माइक्रोफेजेस, एंड फैगोजोम सिक्रेट द अगेन लाइजोजोम। ये फैगोजोम क्या करेंगे, लाइजोजोम सिक्रेट करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट लाइजोजोम that there will be a killing and destruction of microorganism। उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट किया जाएगा या डिस्ट्रॉय किया जाएगा। देन नेक्स्ट जो है दैट इज नेचुरल किलर सेल। तो नेचुरल किलर सेल दीज आर द नॉन फैगोसाइटिक सेल है। ये ग्रैन्युलर सेल है, लार्ज ग्रैन्यूल इसमें प्रेजेंट रहता है, एंड इट इज द नॉन फैगोसाइटिक इन फंक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट। इसको नेचुरल किलर सेल को लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट किया जाता है, एंड दिस कैन किल द वेरियस ट्यूमर सेल एंड सेल इन्फेक्ट विद द वायरसेस विदाउट एनी एंटीजन स्पेसिफिसिटी। मतलब कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन अगर नहीं रहता है तो उस कंडीशन में नेचुरल किलर सेल और ट्यूमर के कंडीशन में नेचुरल किलर सेल और वायरस के कंडीशन में, लेकिन अगर वो स्पेसिफिसिटी नहीं है तो वो काम करता है, तो नेचुरल किलर सेल काम करता है। ये क्या करता है, नेचुरल किलर सेल रिलीज यानी एक्टिवेशन अगर नेचुरल किलर सेल का हो गया तो ये क्या करता है, नेचुरल किलर सेल और दूसरी जो इन्फेक्टेड सेल है इन दोनों के बीच में एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है। ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज होने के बाद देयर इज अ स्पेस बिटवीन टू सेल, so in that two cell there will be secrete a chemical substance, and that chemical substance is not only but the perforin. So perforin is the enzyme. So perforin is enzyme secreted by the natural killer cell. Natural killer cell वहां पे perforin secrete करेंगी, और साइटोलाइसिन यानी साइटो यानी सेल और लाइसिन यानी लाइसिस, डिस्ट्रक्ट करना, किल करना। तो परफोरिन यानी पोर फॉर्मेशन करने वाला एंजाइम वो भी सेल लाइसिस करता है,
और दूसरा है साइटोलाइसिन। तो परफोरिन और साइटोलाइसिन, the natural killer cell, whenever come in contact with the infected cell, it will be secreted and there is the destruction of the particular virus family or whatever the tumor cell. Okay, and there is the death of viruses occur. Now it is the third, means the cellular factor. Now move towards the next factor, that is important factor, inbuilt factor, that is the genetic factor, and it will be studied with the three bases, that is species immunity, racial immunity and individual immunity. Start with the first, that is species immunity. अब क्या होता है, that resistance to pathogen exhibited by the member of species, various of organism are exhibited by the different पैथोजन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस सर्वाइव करते हैं। तो होता क्या है, जैसे कुछ फैमिली जो है वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या बैक्टीरिया के अगेंस्ट में यानी रेजिस्टेंस रहता है, तो किसी के इसमें नहीं रहता है। जैसे रैट जो रहते हैं वो इज ससेप्टेबल टू द डिप्थेरिया, बट गिनी पिग और ह्यूमन बीइंग जो रहता है उनको क्या होता है कि डिप्थेरिया हो सकता है। अब देखो माइस या रैट जो है या गिनी पिग जो है, इन पे बहुत सारे यानी ट्रांसजेनिक एनिमल है, ये इन पे रिसर्च किया जाता है या जो भी रिसर्च रहता है, क्लिनिकल ट्रायल्स जो रहते हैं वो इन पे सबसे पहले किया जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन क्रोमोसोम और इनका क्रोमोसोम देयर अबाउट मैच होता है। VNTR जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स रहते हैं क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहने वाले, तो ये रिपीट होते हैं यानी ये मैच होते हैं, जिसके कारण इन पे क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी स्पीसीज इम्यूनिटी है। ह्यूमन बीइंग और गिनी पिग के केस में इनको डिप्थेरिया होने वाला है या इनको डिप्थेरिया हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोम सेम होने के कारण भी या सेम होने के बावजूद भी रैट को डिप्थेरिया हो सकता है। दैट इज द स्पीसीज इम्यूनिटी। मतलब कोई एक स्पीसीज को रहेगा तो कोई स्पीसीज को नहीं रहेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो हाईली ससेप्टेबल टू द कॉमन कोल्ड, अपने को कॉमन कोल्ड इजीली होता है, ठीक है। Whereas डॉग जो रहते हैं दे आर ससेप्टेबल टू द वायरस कॉजिंग द कोल्ड। कॉमन कोल्ड का जो वायरस है दैट इज राइनो वायरस, तो राइनो वायरस का इन्फेक्शन ह्यूमन बीइंग को बहुत बार होता है लेकिन डॉग को नहीं होता है। सो मीजल्स, तीसरा जो एग्जांपल है दैट इज मीजल्स। मीजल्स अटैक ओनली ह्यूमन, मीजल्स सिर्फ ह्यूमन बीइंग को होंगे, अदर नॉन प्राइमेट जो है इनको मीजल्स नहीं होगा। सो दैट इज पर्टिकुलर इम्यूनिटी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। किसी एक स्पीसीज की जो एक फाइलोजेनी है यानी एक उनका एक जीनोटाइप है, उसके बेसिस पे जो उनकी इम्यूनिटी है, जेनेटिक फैक्टर पे जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है, तो उसको कहेंगे स्पीसीज इम्यूनिटी। दूसरा है रेशियल इम्यूनिटी। देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द रेसेस ऑफ ह्यूमन प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसके केस में डिफरेंट रेसेस में शो द डिफरेंस ससेप्टेबिलिटी टू डिसीज एंड हैविंग द इम्यून रिस्पॉन्स टू अगेंस्ट वेरियस काइंड ऑफ डिसीज। तो इस केसेस में क्या होता है कि कोई एक डिसीज, जैसे अपन अगर बात किया जाए कि दो जो मेन प्योर लाइन जो कैरेक्टर रहेंगे, एक रहेगा अल्बिनो मतलब प्योर व्हाइट जो रहेंगे और दूसरे रहेंगे निग्रो मतलब ब्लैक पीपल्स। तो अपनी जो स्ट्रेन है मतलब इंडियन जो है वो म्यूलेटो में आते हैं मतलब इंटरमीडिएट जो है। तो ये कुछ एल्बिनो और निग्रोस के बीच की अगर बात किया जाती है तो यूएसए में निग्रोस जो रहते हैं वो मोर ससेप्टेबल टू द ट्यूबरक्यूलोसिस, उनको ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है। वही जो अल्बिनो वाले हैं मतलब जो प्योर व्हाइट जो स्पीसीज जो है तो उनको ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं हो सकता है। सो दैट इज अबाउट द रेशियल इम्यूनिटी। मतलब किसी एक रेसेस के बेसिस पे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है दैट इज रेशियल इम्यूनिटी। नाउ थर्ड वन इज द इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी मतलब माई इम्यूनिटी, मतलब हर किसी का ओन इम्यूनिटी सिस्टम, हर किसी का जो डिफरेंशिएट इनेट इम्यूनिटी रहेगा, इट इज डिपेंड ऑन इट्स जेनेटिक फैक्टर, देन ऑल दीज लाइक फिजियोलॉजिकल, मैकेनिकल, बायोकेमिकल, सेलुलर फैक्टर, ये सारी चीजें इस पे डिपेंड रह के रहेगा। यानी इस पे डिपेंड रह के जो पर्टिकुलर ह्यूमन की एक जो इम्यूनिटी बनेगी दैट इज इंडिविजुअल इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्विंस की भी बात की जाती है, अगर होमोजाइगस ट्विन है, आइडेंटिकल ट्विंस है या होमोलाइगस ट्विन है, तो उनको सेम डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा अगर या ससेप्टेबिलिटी रहेंगी अगेंस्ट लेप्रेसी एंड वेरियस काइंड ऑफ द कॉलरा, डिप्थीरिया वगैरह ये जो केसेस रहेगा या कैंसर जो रहेगा या ट्यूबरक्यूलोसिस रहेगा, तो उनको सेम डिग्री ऑफ यानी ससेप्टेबिलिटी रहेंगी होमोजाइगस ट्विन के केस में, आइडेंटिकल ट्विन के केस में। लेकिन यही केस अगर हेटेरोजाइगस के केस में देखते हैं तो हेटेरोजाइगस के केस में केस चेंज होगा, दे आर हैविंग द डिफरेंट कोरिलेशन। इसका दोनों का हेटेरोजाइगस के केस में एक दूसरे के साथ कोरिलेशन नहीं रहेगा, इनमें डिफरेंस रहेगा बिकॉज दे आर डिफरेंट।
हर एक इंडिविजुअल की इम्यूनिटी अलग रहेंगी, हर एक इंडिविजुअल का VNTR अलग रहता है, जेनेटिक मेकअप थोड़ा बहुत चेंज रहता है, उसके बेसिस पे उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है. So that is individual immunity. And the last factor, that is other factor. It contains the three factor also. That is, first one is the temperature, another one is the inflammation, and third one is the fever. That is called as the pyrexia. टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन इन द इननेट इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी को डिटर्मिनेशन करने के लिए या इसको फाइंड आउट करने के लिए टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस का जो बैसिलाई रहता है तो विच आर पैथोजेनिक टू द मैमल्स, ये मैमल्स को होता है बट विल नॉट कॉमन टू द कोल्ड ब्लडेड एनिमल. कोल्ड ब्लडेड एनिमल को नहीं होते. अपन जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है तो अपने को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, लेकिन कोल्ड ब्लडेड जो है उनको नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल मलेरियल पैरासाइट की बात ले लो. मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम मलेरी, कौन सी भी अगर फैल्सीपेरम कोई सी भी अगर स्ट्रेन रहती है तो सबसे पहले ह्यूमन के बॉडी में नहीं जाता है. क्यों? क्योंकि उसको इन्फेक्शियस स्टेज बनानी पड़ती है, स्पोरोजाइट स्टेज. वो स्पोरोजाइट स्टेज कब बनाता है? जबकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल के कोल्ड ब्लडेड के बॉडी में रहे. तो इसलिए वो सबसे पहले वेक्टर के बॉडी में जाता है, वो जो कि है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. फीमेल एनाफिलिस के मॉस्किटो के बॉडी में जाएगा, वहां पे जाके इन्फेक्शियस स्टेज स्पोरोजाइट बनाएगा. एंड व्हेनेवर दैट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट टू अ पर्टिकुलर ह्यूमन, दैट प्लाज्मोडियम एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो इस काइंड से टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है फॉर द इननेट इम्यूनिटी. देन जैसे हेंस जो रहती है तो वो जो रहती है ना नेचुरली इम्यून टू द एंथ्रैक्स, क्योंकि उनका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमन बीइंग का रहता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, हेंस का रहता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस टेम्परेचर पे या ये उनका बॉडी टेम्परेचर होने के कारण हेंस जो रहता है वो नेचुरली एंथ्रैक्स को यानी इम्यून रहता है. बट हेंस के केस में अगर उनका बॉडी टेम्परेचर लोअर होगा तो दे विल बी ससेप्टिबल टू द एंथ्रैक्स, उनको एंथ्रैक्स हो सकता है. सेकेंड जो है दैट इज इन्फ्लेमेशन. अब इन्फ्लेमेशन मतलब होता है इट इज द इंजुरी ऑफ टिश्यू. अगर कोई टिश्यू है, ठीक है, उसको अगर इंजुरी हो गई है या इरिटेशन कॉज बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन बाय द सेलुलर लेवल. तो ये सेलुलर लेवल से होता है. कोई भी अगर फॉरेन एंटीजन अगर बॉडी में चला गया तो वो सेल अपनी पहले उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. रिकॉग्नाइज करने के बाद सेल सिग्नलिंग होने के बाद वहां पे वस्कुलर और सेलुलर एक्टिविटी चालू होती है, और सेलुलर वस्कुलर एक्टिविटी के कारण जो एक रिस्पॉन्स आता है दैट इज कॉल्ड एज द इन्फ्लेमेशन. तो इन्फ्लेमेशन जो रहता है वो कैरेक्टराइज होता है डिफरेंट इससे, जैसे है स्वेलिंग है, रेडनेस है, हीट है, पेन है, देन डॉटर फॉर्मेशन है. तो ये सारी चीजें वहां पे हो जाती है जो कि एक तरह का बताता है इन्फ्लेमेशन. जैसे अगर कोई मॉस्किटो बाइट किया है तो वहां पे इचिंग होती है सबसे पहले, तो देन रेडनेस आ जाता है अगर ज्यादा इचिंग कर रहे हैं तो, देन डॉटर फॉर्मेशन भी होता है अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में करते हैं यानी उसका प्रोटीन अगर अपने बॉडी में गया है तो इट इज ए वन काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन. होता क्या है इन्फ्लेमेशन? ये 3 प्रोसेस से होता है. सबसे पहले जो आर्टेरियोल्स होते हैं तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट होंगे और दे डायलेट होते हैं, देयरबाय ब्लड फ्लो जो रहता है वहां पे होने वाला वो इंक्रीज इसमें चल जाता है बहुत फास्ट. एट द साइट ऑफ इंजुरी या जहां पे इंजुरी है वहां पे जो ब्लड फ्लो रहेगा वो हाई अमाउंट में जाता है. दूसरी बात, अगर ब्लड फ्लो फास्ट में जा रही है तो वहां पे जो वॉल्स रहेंगी उस वॉल की जो परमिबिलिटी रहेंगी कैपिलरीज की वो इंक्रीज हो जाएंगी. कैपिलरीज की जो परमिबिलिटी इंक्रीज होने के कारण वहां पे जो ब्लड काउंट रहेगा वो ज्यादा रहेगा तो वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आएंगी. और स्वेलिंग होने के बाद वहां पे पीएमएन मतलब पॉलीमोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड जो रहता है जो कि माइक्रोफेजेस है, जो यहाँ पे अपन देख चुके हैं फैगोसाइटोसिस में, वो वहां पे जाएंगे एट द साइट ऑफ इंजुरी, एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजुरी. फैगोसाइटोसिस चालू हो गया मतलब माइक्रोफेजेस चालू होने के बाद फिर से वहीं पे कीमोटैक्सिस होगा, अटैचमेंट, इंजेक्शन, किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजुरी दैट डैमेज टिश्यू विल बी डिस्ट्रक्ट ऑल्सो, वो डैमेज टिश्यू को भी डिस्ट्रक्ट कर देंगे. तो ये रहता है इन्फ्लेमेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज द फीवर और इट इज कॉल्ड एज द pyrexia. What is fever? When normal rise in the normal body temperature. Normal body temperature में अगर rise होता है so it is called as the fever.
then it is the natural defense mechanism against the different माइक्रोऑर्गेनिज्म. अगर बॉडी में इंटरनल बॉडी में या ब्लड सर्कुलेशन में अगर माइक्रोबियल काउंट अगर बढ़ता है तो बॉडी क्या करती है, इसके अगेंस्ट में डिफेंस मैकेनिज्म करेंगी. कैसे डिफेंस मैकेनिज्म करेंगी कि इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर रहेगा उसको बढ़ा देंगी, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म विल बी किल देयर. फीवर अगर बहुत ज्यादा रहता है तो इट विल बी गिविंग सिग्नल टू द इंटरफेरॉन, ये इंटरफेरॉन को भी सिग्नल देता है, और then there is the formation of interferon and thus helping the recovery from the again viral infection. बहुत बार अगर बुखार आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है. What occur there? That increase in the normal body temperature that will giving signal to the interferon, and so that interferon is disturbed to the antigen. If interferon is not only in so much powerful, then it is with the natural killer cell and again destroy that particular viruses, and the innate or natural or non-specific or inborn immunity will be occur over here. So that is about the innate or inborn immunity. In next lecture we are discuss about the acquired or adaptive immunity. Thank you so much.